شادی میری ہوئی لیکن حاملہ میری بہن ہو گئی۔ مجھے یہ فکر اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی تو کبھی میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوتا۔ روز رات مجھے 1 بجے خواب آتا۔ آج بھی رات 1 بجے چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ میرے ساتھ کئی مہینوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی تو رات 1 بجے کسی کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں آتی، جیسے کوئی بچی رو رہی ہے۔ لیکن جو ہی میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ تنگ آ کر میں اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں آ گئی، جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے آ کر جگایا اور اپنی پریشانی بتائی تو وہ مجھے گھور کر پھر سو گئی۔ کرتے کیا نہ کرتے کہ مصدقات میں بھی اس کے پاس سو گئی۔ میرا نام ساحرہ ہے، میری عمر 21 سال ہے، ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میری ماں گھریلو خاتون ہے جبکہ باپ کسی کی گاڑی چلاتا ہے۔ زندگی اپنے معمول پر گزر رہی تھی۔ چھوٹی بہن پڑھتی تھی، اس کی عمر 19 سال تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ بھائی ہم سے بڑا تھا، ہم اس سے بھی خوب لڑتی اور ناز نخرے اٹھواتی، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے باپ کا رویہ ششدر کر دیتا۔ وہ مجھ سے ایسے ہم کلام ہوتے جیسے میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ ماں بھی تب مجھ سے نظریں پھیر لیتی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے کا شغل پورا کرتی تو ماہین فٹ سے میرے کمرے میں آ کر مجھے گلے لگا لیتی۔ جہاں میں کبھی کبھار خود کو تنہا محسوس کرتی، وہیں عمار اور ماہین مجھ سے گپیں ہانکتے کہ میں سب کچھ بھول جاتی۔ اماں ہر وقت اب بھائی کی شادی کی بات کرتی رہتی۔ ماہین نے تو عمار کی شادی کے لیے بہت تیاریاں کر رکھی تھی۔ ہم دونوں آنے والی بھابھی کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اماں کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں کسی رشتہ دار کی لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں۔ یہ ہی تو شادی بیاہ کی عمر ہوتی ہے۔ عمار کو اپنی فکر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تم پیچھے سے صفائی کر کے ابا کو کھانا دے دینا۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے اندر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ ایسا کیا ہے جو یہ خواب مسلسل میرے تعاقب میں ہے؟ میں اپنی سوچ کے جنگل میں نہ جانے کتنی دیر بھٹکتی رہی کہ اچانک ابا کی کرختہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں فوراً اٹھ کر دوپٹہ درست کیا، ابا کو چائے بنا کر دی، گھر کا کام کاج نپٹایا اور سلائی مشین رکھ کر ماہین کا سوٹ سینے لگ پڑی۔ اماں واپسی پر شدید پریشان تھی۔ میں نے اماں سے استفسار کیا تو وہ رو پڑی کہ وہ عمار سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ مزید میں نے کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ جہیز کی بھاری ڈیمانڈ کرتے۔ جب ہم ان کی شرط ماننے سے انکار کر دیتے تو وہ فوراً اٹھ کر چلے جاتے۔ میں اور ماہین شکل و صورت کی اچھی تھی، لیکن پھر بھی دولت کی آڑ میں جو بھی ہمیں دیکھنے آتا ہماری غربت کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا۔ ماہین آج کل چپ چپ رہتی تھی، نہ جانے وہ ہر وقت کہاں کھوئی رہتی۔ میں جب ماہین سے پوچھتی تو وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگ جاتی۔ گھر کی فکر مجھے دن بہ دن کھائی جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک ہی ہنر تھا، سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے آتے تو گھر کا راشن آ جاتا تھا۔ عمار بھی ملازمت ڈھونڈ رہا تھا۔ دن بھر کی خجل خواری کے بعد رات کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا۔ میں اور عمار روز برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ میں اسے تسلی دیتی کہ فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتا۔ میں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی تاکہ سو سکوں۔ رات 1 بجے پھر وہی خواب، ایک بچی رو رہی ہے اور اسے کوئی اندھیرے میں لے کر جا رہا ہے۔ میں اس کی چیخوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ میں ہانپتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ نہیں تھا۔ صبح معمول پر اٹھ کر گھر کا کام کاج کیا۔ آج شہر سے کچھ لوگ گھر آئے تھے۔ اچانک ان کی آمد دیکھ کر اماں اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے حلیے سے بہت امیر کبیر لگ رہے تھے۔ اماں نے انہیں کچے صحن میں چارپائی پر بٹھایا اور سوالیہ نظروں سے ان کی جانب مبذول ہوئی تو انہوں نے آنے کا جواز پیش کیا کہ وہ رشتے لے کر آئے ہیں، وہ میرے لیے اپنے لڑکے کا رشتہ لائے ہیں۔ اماں نے ان کو اپنی غریبی کا بتایا کہ ہم غریب ہیں، اتنے اونچے گھر لڑکی نہیں پہ آ سکتے۔ ادھیڑ عمر کی خاتون نے اماں سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ مان لیں تو ہم آج ہی منگنی کر دیتے ہیں۔ اماں نے شرط پوچھی تو انہوں نے ایسی شرط رکھی جسے سن کر باہر سے آتے عمار کی بھی غصے سے رگیں تن گئیں۔ اماں بھپرے شیر کی مانند اٹھیں اور کہنے لگیں، بہن جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا سائرہ کا نکاح تو ہم کر دیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہر منگل کے منگل ہماری چھوٹی بیٹی ماہین آپ کے بیٹے کے ساتھ رہے گی؟ وہ خاتون نے بس
हतेम करके सर हिलाया और उठ पड़ी कि हम आपके जवाब के इंतज़ार करेंगे, वरना आपकी मर्ज़ी। इसी तरह सारी उम्र आपकी बेटियां आपकी दहलीज पर पड़ी रहेंगी। अम्मा की आंखें पानी से लबालब भर गईं और वो वहीं चारपाई पर ढेर हो गई। अमार भाग कर उनके पास आया और उनको सहारा दिया और वो अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने लगी कि या अल्लाह हमारा वो गुनाह माफ़ कर दे जो हमने लालच में किया। मैं अम्मा को हैरानी से तकने लगी कि अम्मा ये क्या कह रही हैं। माहीन कमरे में रो रही थी। घर के हालात मेरी समझ से बालातर हो रहे थे। माहीन दिन ब दिन लागर होती जा रही थी। वजह पूछती तो कह देती आप ही हमें माफ़ कर दो। अमार भी मुझसे अब नज़रें चुराने लगा था। मैं रात को बरगद के नीचे बैठकर सब कड़ियाँ आपस में मिलाने लगी कि आखिर अम्मा से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है। माहीन हर वक्त अब क्यों रोती है, मुझसे माफ़ी क्यों मांगती है। अमार भी मुझसे बात नहीं करता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और 6 माह बाद वही खातून और साथ एक लड़का आया। उन्होंने शर्त दोहराई। मुझे वो लड़का न जाने क्यों पहली नज़र में ही अपना लगा। मेरा दिल किया मैं इससे बात करूं, लेकिन हया के हाथों मजबूर थी। माहीन फ़ौरन बाहर आई और कहने लगी मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं हर मंगल को आपके बेटे के साथ रहूंगी। अमार ने कुछ बोलने के लिए लब खोले तो फ़ौरन माहीन ने बात काट दी और मंगनी की रस्म का कहने लगी। लड़के की माँ ने मुझे गले लगाया और मुझसे लिपट कर रोने लगी। सब उनकी इस हरकत पर हैरान थे। मुझे उनसे अलग ही अपनायत महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए, माथा चूम कर उठ गई। रात को अब्बा को जब ये बात पता चली तो घर में एक तूफ़ान बर्पा हो गया। माहीन को अब्बा ने थप्पड़ मारा, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस न हुई। मैंने माहीन को पकड़ कर चुप करवाया। घर के माहौल में तनाव पैदा हो चुका था। अम्मा रोज़ रोती और अब्बा से कहती कि ये सब हमारे उस गुनाह का नतीजा है। मैं अमार के कमरे में जाती तो वो उठ के बाहर आ जाता। मुझे कहता साहिरा मेरे कमरे में अकेली ना आया करो। अमार ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो अमार मुझे दृष्टगी से डांट देता और कहता मुझे भाई मत बोला करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। माहीन घंटों घर से बाहर रहती। वजह पूछने पर कहती दोस्त के घर थी। अब्बा माहीन से बातचीत करना बंद कर चुके थे। अम्मा ने माहीन को समझाया बेटी ये तुम क्या कर रही हो। माहीन कहती आपकी गलती का अजाला। तंग आकर मैंने अम्मा से पूछा अम्मा ये क्या माजरा है, किस गलती की माहीन बात कर रही है। तो अम्मा मुझे घूरती और कहती ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू करम जली ना हमारे घर आती ना ये सब होता। मैं दौड़कर बरामदे में आकर रोने लगी और अपनी गलती ढूंढने लगी। ऐसा क्या हुआ है जो अम्मा मुझे ये सब कहती हैं। घर में अब शादी की छोटी मोटी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महीन अब मुझसे बातचीत करना तर्क कर चुकी थी। मैं पास बैठती तो वो उठकर चली जाती। मैं बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर आने वाली ज़िंदगी का सोचती। आज कितने महीनों बाद वो ख्वाब मुझे दोबारा याद आया। मैं तो उसे मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। पता नहीं वो कौन बच्ची है जो रोती चीखती है। अगले दिन वो खातून शादी की तारीख रखने आ गई। अगले जुमे को मगरिब के बाद मेरा निकाह तय होना पाया। मैं बुत बनी खामोश अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुतल्लिक सोचती तो कभी अम्मा अब्बा की जली कटी बातें सोचती। दिन थे कि पर लगा के उड़ गए। महीन रोज़ मुझे बाज़ार लेकर जाती और मेरी चीज़ें ख़रीदने के बजाय अपने लिए नए नए जोड़े ख़रीदती। एक आध जोड़ा उसने मुझे भी दिला दिया। मैं सोचती रह जाती कि महीन से पूछूं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। मुझे अमार की फ़िक्र थी, वो कितने दिनों से घर से गायब था। मैंने जो पैसे सिलाई करके जोड़ रखे थे वो इससे अमार के लिए 2 सूट खरीदे। आखिरकार जुमे का दिन भी आ गया। महीन मुझे कमरे में ले गई। अचानक मुझे अपना सर भारी महसूस हुआ और मैं वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो महीन मेरे पास बैठी थी। उसने मुझे कहा निकाह हो चुका है, अब रुखसती है। मैं कुछ बोलने से कासिर थी। मैंने आंखों से आने वाले पानी को अंदर धकेला और उठकर बैठ गई। इतनी देर में रुखसती का शोर उठा और मैं रुखसत होकर बाबर के साथ आ गई। मेरा इस्तकबाल पुरजोश तरीके से हुआ और हर कोई मेरे गले लगकर ऐसे रो रहा था जैसे इस घर से मेरी रुखसती हो रही है। मैं सबके रवैये पर हैरान थी। वो अधेड़ उम्र की खातून मेरे गले लगकर और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। बाबर ने मेरा सर पर हाथ रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे ससुराल क्या हो रहा है। मुझे कमरे में लाया गया जहाँ दुनिया भर की आसाइशें मौजूद थी। मैं कमरे में आकर बैठ गई और अम्मा अब्बा अमार महीन को याद करके रोने लगी। मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली तो वो खातून मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। आज मंगल का दिन था। मेरे जहन में झमाका हुआ। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई क्योंकि मुझे वो शर्त याद आ गई थी। मैंने उनसे माहीन का पूछा तो वो कहने लगी कि वो बाबर के साथ दूसरे घर में है। मुझे अपनी बेबसी पे रोना आया। बाबर का मेरे से बहुत कम सामना होता, लेकिन जब भी होता तो वो मेरे सर पे हाथ रखता और चला जाता। मुझे समझ नहीं आता था
کہ میں ससुराल में हूँ या अपने घर, क्योंकि शादीशुदा ब्याही दुल्हन जैसी मेरी कोई रस्म ना हुई। जब से मैं यहाँ आई थी बाबर कई दिनों बाद घर मिलता, लेकिन शर्त के मुताबिक महीन हर मंगल बाबर के साथ दिन और रात गुजारती। मुझे अम्मा की याद सताने लगी क्योंकि 6 माह हो चुके थे मैं अपने घर नहीं गई थी। मैंने घर जाने का कहा तो उस खातून ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं घर आई तो अम्मा ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैं खुद ही आगे बढ़कर गले मिली। अमार का पूछा तो पता चला कि वो काम पर गया है। माहीन बीमार है। मैं फ़ौरन माहीन को डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि उसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। वहाँ आकर पता चला कि माहीन माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने माहीन से पूछा तो वो खामोश रही। घर आकर मैं बरगद के दरख्त तले बैठकर माहीन का सोचने लगी कि निकाह मेरा हुआ है, हमला माहीन कैसे हो सकती है, कहीं बाबर ने तो। ये सोचकर ही मेरी रूह लर्ज़ गई। मैंने माहीन से पूछा तो वो बुत बनी रही। मैंने ये बात अम्मा को बताई कि माहीन माँ बनने वाली है। वो भी शशदर रह गई। माहीन को कोसने लगी। माहीन को 3रा महीना था। अम्मा कहती कल ही जाकर ये किस्सा ख़त्म करो, ये ज़रूर बाबर का किया धरा है। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। ये बात अम्मार अब्बा तक भी पहुंच गई। वो आग बगूला हो चुके थे। बाबर और माहीन को मारने के तरपे थे। मैंने माहीन से बात करना चाही तो वो लेट गई। मैं बाहर आकर बरगद के दरख्त के नीचे बैठ, इतनी देर में बाबर आ गए। वो यूं मुझे बैठकर मेरी तरफ आए और मुझे डांटने लगे कि छोटी बीमार हो सकती हो, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता सर्दी है। मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन छोटी लफ्ज़ पर अटक गई। वो मुझे फ़ौरन अंदर लाए माहीन के पास। माहीन उठकर बैठ गई। बाबर ने माहीन का माथा चूमा। इतनी देर में अमार, अब्बा, अम्मा और अधेड़ उम्र की खातून भी आ गई। मैं कांप रही थी कि न जाने अब क्या होगा। मैं बाहर जाने ही लगी थी कि माहीन बोली, आप ही आज सच नहीं सुनेंगी। मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगी। मैं किसी ट्रांस सी कैफियत में उसके साथ बैठ गई। वो जूं जूं बता रही थी। मेरी हिचकी बन चुकी थी। बाबर भी रो रहा था। अम्मा अब्बा की नज़रें झुकी हुई थी और वो खातून, मेरा दिल किया अभी उसके सीने से लगकर फोड़ फूट कर रोऊं। आप मेरी सगी बहन नहीं हैं, आप बाबर की सगी बहन हैं। आप 4 साल की थी जब अब्बा आपको उठा लाए। आप अब्बा के मालिक की बेटी थीं। अब्बा आपसे पैसे कमाना चाहते थे, आपको कहीं आगे बेचकर या फिर अपने मालिक से पैसा निकलवाना चाहते थे। जब आपको अब्बा उठा लाए तो आपके सगे बाप ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त बाबर 7 साल का था, लेकिन जब से वो बड़ा हुआ था आपकी तलाश में था। मुझे ये तब पता चला जब अब्बा अम्मा 1 साल पहले आपस में इस बात से लड़ रहे थे। अमार भी ये जानता था। आप ही प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हम आपकी सब महरूमियों का सबब बने हैं। बाबर उठकर मुझे गले से लगाया। मेरी हिचकी बंद गई। आप ही ये सब कुछ मैंने और बाबर ने सोच समझ कर किया। बाबर का मुझसे निकाह हुआ है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे ये था कि जब अब्बा हर मंगल के मंगल वाली शर्त सुनेंगे तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेंगे, लेकिन अब्बा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। आपके निकाह के दिन जब मैं आपको अंदर लाई उस वक़्त आपको मैंने बेहोशी की गोली दी थी और मेरा निकाह बाबर से हो गया। अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं घर वापस आ गई और कमरे में बंद हो गई। क्या वो ख्वाब मुझे इसीलिए आता था कि मैं ही वो बच्ची थी जो अपनी माँ के पास जाने के लिए मचल रही थी। सच्चाई का जान कर मेरा लोगों से एतमाद उठ गया, लेकिन बाबर और मेरी माँ मुझे वापस दुनिया की तरफ लाए। माहीन अब हमारे घर आ चुकी थी। अमार को अच्छा काम बाबर ने दिलवा दिया था। अमार मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मैंने ये फ़ैसला अपने माँ और भाई के सुपुर्द कर दिया। वो जो चाहे मुझे कबूल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।